Good morning, students. This is the part 2 of your fourth chapter, 8th standard class 8 geography, fourth chapter, structure of the ocean floor. So up to now we have seen the continental shelf on in the first part we come to know it is a mountain, then plateaus, then coast, then continental shelf, and this is continental slope, then marine deep, marine tank, and it is a submerged mountain, or we can say the island, mountain of ocean, or we can say the island, and this is deep marine tank. So now continental shelf तक के देखा, continental shelf में that region receive the sunlight, that's why the algae वगैरह, plankton है, algae है, ये समुद्री plants है, that is the plants of the ocean easily grow, तो उसको खाने के लिए fish आते हैं और यही fishing point है, natural gas वगैरह भी अभी मिलते हैं. Now continental slope कैसे रहता है? You can see that this is a continental shelf, right? And this is a continental slope. ये slope है. Understand? So continental slope, after the extent of continental shelf is over, the slope of the seabed becomes steeper और गहरी हो जाए. This is called the continental slope. के कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद जैसे ही ओवर होता है तो स्लोप हो जाता है, स्लोप और स्टीप और गहरी होती है और ढलान होती है. दिस इज कॉल्ड द कॉन्टिनेंटल स्लोप. द डेप्थ ऑफ द स्लोप इज फ्रॉम 200 मीटर टू 3600 meters. In some places it is more. Continental slope is narrow and the lower boundary of the continental slope is considered to be a boundary of continents. So यहीं पर जैसे दो कॉन्टिनेंट जो अलग होते हैं, फॉर एग्जांपल अवर एशिया यूरोपियन कॉन्टिनेंट से अलग हुआ है तो ये कॉन्टिनेंट स्लोप की वजह से, अफ्रीका एशिया से अलग हुआ है कॉन्टिनेंट स्लोप की वजह से. सो कॉन्टिनेंट स्लोप प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल टू डिवाइड द कॉन्टिनेंट. अबैसल प्लेन फ्लैट सरफेस पे रहता है, लाइक वी कैन सी द अबैसल प्लेन. दिस इज अ अबैसल प्लेन. इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से द अबैसल प्लेन इज अ plateau of the ocean. Beyond the continental slope lie the abyssal plains, which are the flat part of the seabed. The abyssal plain consists of various submerged landforms like hills, plateaus, etc. You can see this abyssal plain here. Abyssal, this is the abyssal plain, that region. Continental slope के आगे abyssal plain रहेगा. Then mountains, ranges and plateaus. अब समुद्री माउंटेन क्या है, समुद्री पहाड़ क्या है, right? Then the hills, like the ocean mountain is nothing but our island, like Andaman Nicobar Island is a submerged mountain of the ocean, Indian Ocean. The hills and mountains found on the ocean bed are called submerged hills and mountains. तो समुद्र में पाए जाने वाला पहाड़ है वो, that is nothing but our island. These hills are hundreds of kilometers wide and thousands of kilometers long. Peaks of some of the submerged hills come over the sea level. They are visible to us marine island. So वो इतने ऊंचे रहते हैं कि हमको पानी के ऊपर नजर आते हैं, तो that is the island. They are visible to us marine island. Iceland in Atlantic Ocean, Andaman Nicobar Islands in the Bay of Bengal are examples. The summits of some marine islands are flat and extensive. They are called oceanic or submarine plateaus. For instance, Chagos plateaus in the Indian Ocean. Then marine dips and marine tracts. नाम से ही indicate हो रहा है. Marine dips, marine मतलब समुद्री, deep मतलब गहरा. That marine dips, you can see that this point. This is the marine dip, right? Marine dip and marine tank. अब ये marine dip और marine tank है क्या? On the ocean bed there are some landforms which are deep, narrow and steep. They are called marine dips or tanks. जो कि ocean में बहुत गहरी, वो landform जो कि बहुत गहराई तक रहते हैं, बहुत गहरे रहते हैं, उसको marine deep बोलते हैं. And the shallower ones are called marine deep, while the deeper ones are extending for longer distance are called tanks. जो कि बहुत ज्यादा गहरे होंगे, बहुत ज्यादा डेप्थ में होंगे, तो उनको क्या कहेंगे, मरीन टैंक कहेंगे. The tanks are thousands of meters deep from the sea level. दुनिया में सबसे बड़ा जो मरीन टैंक है वो मारियाना टैंक है इन द पैसिफिक ओशियन. ये मारियाना टैंक, राइट? यू कैन सी दैट मारियाना टैंक इन द पैसिफिक ओशियन इज द डीपेस्ट टैंक इन द वर्ल्ड. इसका जो टोटल हाइट है 11,034 मीटर गहराई. 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. वी कैन से द 11 किलोमीटर समुद्र से नीचे है, समुद्र की
जो सरफेस है उससे नीचे है। एंड द मिड ओशियनिक submerged hills and marine tracts are geologically the most active areas of ocean bed in the world, and there are many active volcanoes here, and these are also earthquake prone areas। और यही मरीन ट्रैक पैसिफिक ओशियन में इसलिए बहुत ज्यादा जो अर्थक्वेक आते हैं, लाइक जापान पैसिफिक ओशियन में लोकेटेड है, पैसिफिक ओशियन में ही ज्यादातर अर्थक्वेक आते हैं, वोल्केनिक इरप्शन होता है। नो मरीन डिपॉजिट लाइक पेबल्स, क्ले एटसेट्रा ब्रॉट बाय रिवर, ग्लेशियर एटसेट्रा from the continent, and the deposition occur mainly on the continental shelf. These are called marine deposits. Then lava ash erupting out of fine soil particles are deposited on a large scale. Remains of marine plants and animals are mixed in this deposit, and this mixture is made up of fine particle and lies in the form of fine clay. This is around 30% of the deposit. These are called marine ores. यानी कि बहुत सारे जो लावा है समुद्र से, बहुत सारे रिवर अपने साथ पेबल्स, सेडिमेंट्स वगैरह लेके आ रहे हैं, मरीन प्लांट्स भी है, तो वो सारे मिक्सचर से मिलके क्या बन रहा है, डिपॉजिट बन रहा है, जिसको कहेंगे मरीन ओर्स। टू अंडरस्टैंड द फॉर्म ऑफ द मरीन लाइफ इन द ओशियन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल ऑन द ओशियन बेड, these deposits very important. Sedimentary rocks are formed due to the depositing layer over layer of the sediments and the pressure of sea. So we can see कि कौन कौन से डिपॉजिट हो रहे हैं। मरीन डिपॉजिट, जो शहरी आबादी, अर्बन पॉपुलेशन अपने साथ कचरे वगैरह, वाटर बॉटल वगैरह समुद्र में फेंक देते हैं, घान कचरे फेंक देते हैं, दैट दीज आर द मरीन डिपॉजिट। मरीन सेडिमेंट्स, एंथ्रोपोजेनिक डिपॉजिट्स। एंथ्रोपोजेनिक मतलब एंथ्रो इंडिकेट्स द ह्यूमन एक्टिविटी, जो ह्यूमन बींग्स लोग जो डिपॉजिट करते हैं, कचरे वगैरह फेंकते हैं। So besides some human induced material is also found here. This includes sewage, solid waste, radioactive material, waste chemical, plastic. इससे क्या हो रहा है कि मरीन एनिमल्स मर रहे हैं, और उनमें आपने सुना होगा मिनामाटा डिसीज, बहुत सारे जो केमिकल्स वगैरह भी समुद्र में डाल दिए जाते हैं, तो समुद्री फिश, तो फिश है उसको खा लेती है, और जब ह्यूमन कंजम्पशन होता है उस फिश का, तो वो मिनामाटा डिसीज के तौर पे ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट हो जाता है। यू नो द डेप्थ, एलिवेशन और डेप्थ। एलिवेशन और डेप्थ यानी ऊंचाई और गहराई कोई भी प्लेस की मेजर की जाती है फ्रॉम द सी लेवल, है ना। आप 9th और 10th स्टैंडर्ड में देखोगे द अल्टीट्यूड, जो ऊंचाई मेजर करते हैं अल्टीट्यूड के जरिए, और आपका जो लैटिट्यूड है वो डिस्टेंस है फ्रॉम द टू प्लेसेस ऑन द अर्थ सरफेस, और लॉन्जिट्यूड के जरिए टाइम फाइंड करते हैं। द एवरेज ऑफ हाइट, elevation or depth of any place is measured from the sea level. The average of the highest heights and the lowest heights is considered as sea level. This average is taken to be zero. Altitudes or depth are measured in showing positive or negative values. For example, Mount Everest तो पॉजिटिव में आएगा ना, यानी कि अगर एलिवेशन है समुद्र की सतह से ऊपर है तो प्लस में रहेगा। माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर है, एंड मारियाना ट्रैंक माइनस 11034 मीटर। अंडरस्टैंड, क्योंकि जो जमीन समुद्र की सतह से ऊपर है वो प्लस में रहेगा, जो नीचे है वो निगेटिव रहेगा। सो हमारे इंडिया में फॉर सर्वे पर्पस इन इंडिया द हाइट ऑफ सी लेवल इज इन चेन्नई इज कंसीडर्ड टू बी 0। चेन्नई जो है ना साउथर्न स्टेट में हमारे तमिलनाडु का कैपिटल है, तो उसको समुद्री सतह पे 0 लिया गया, वहां से एलिवेशन मोजा जाता है, मेजर किया जाता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो के खत्म होते ही पार्ट 1 की लिंक रहेगी, उसको देख लेना, तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा। और ये लास्ट में डू दिस एक्टिविटी, जो मटेरियल कमिंग अलोंग विद द व्यूज, है ना। समुद्र में आपने देखा होगा पानी, समुद्र के सरफेस पे, कोस्टल एरिया पे बहुत सारे कचरे आ जाते हैं, बहुत से ह्यूमन एक्टिविटी, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी मतलब जो ह्यूमन इंड्यूस, जो ह्यूमन बींग्स कचरे वगैरह फेंकते हैं, सीवेज फेंकते हैं, तो वो नुकसानदेह है, इसलिए हमको नहीं फेंकना चाहिए। Which of these are perishable items like plants, coaches, shell, aquatic animal? Perishable मतलब खत्म हो जाने वाले। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम कागज है या प्लांट्स है वो डिग्रेड हो जाएगी, लेकिन प्लास्टिक बॉटल है समुद्र में डिग्रेड नहीं होगी, वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ऐसी रहेगी। लाइक केमिकल्स, मेटल्स, वो पेरिशेबल नहीं है। और जब ये पेरिशेबल आइटम्स को अगर मरीन एनिमल्स खाएंगे तो ये उनके फूड चेन में जाके पॉइजन की सूरत में मिनामाटा डिसीज के तौर पर ह्यूमन बीइंग में चले जाएगी, तो ये अल्टीमेटली पूरा एनवायरनमेंट का नुकसान है। चलो वी विल सी द सम क्वेश्चन लाइक देयर आर द लैंडफॉर्म्स ऑन द लैंड, ओशियन फ्लोर आल्सो हैज सबमर्ज्ड लैंडफॉर्म बिकॉज़
These are the land underwater. They are the volcanoes underwater. Land is continuous and there is a water in deeper parts. So the land is continuous. Its level is not the same everywhere like that of water. Yes. So the land is continuous. Its level is not the same everywhere like the water. Next question, which part of the ocean floor is most useful to man? कॉन्टिनेंटल शेल्फ, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, मछलियाँ आती है, क्योंकि उस रीजन में सूरज की रोशनी पहुँचती है तो उससे प्लांट्स वगैरह, अलगी है, प्लांटन प्लांट है, उग जाते हैं, ग्रो होते हैं, तो मछलियाँ खाने आती है, तो फिशिंग एक्टिविटी वहाँ पर होती है. तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ. which one of the following option is related to marine deposits? Answer is volcanic ash. Continental shelf remains of plants and animals. Now you can see what are these. Understand, this is the deepest part. तो Mariana Trench आएगा, right? This is a number 2. Number 2 पे क्या रहेगा? It is a island or ocean, mountain or island. We can say island. It is coastal. So look here, the first one is a marine deep. Second, submerged mountain, or we can write, you can also write island, submerged mountain, यानी समुद्र में डूबा हुआ mountain. थर्ड नंबर पे सबमरीन प्लेटो, दिस इज सबमरीन प्लेटो, प्लेटो रीजन है. देन फोर्थ नंबर पे मरियाना ट्रैंक, मरीन ट्रैंक समुद्री गहराई का हिस्सा. देन फिफ्थ में कॉन्टिनेंटल स्लोप एंड सिक्स इज अ कॉन्टिनेंटल शेल्फ. कॉन्टिनेंटल शेल्फ, यहाँ पर सूरज की रोशनी आसानी से पहुंच रही है तो फिशिंग एक्टिविटी हो रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस लैंडफॉर्म्स इज यूजफुल फॉर द डीप सी रिसर्च? रिसर्च के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? द सबमरीन प्लेटो एंड मरीन ट्रैंक आर द लैंडफॉर्म यूजफुल फॉर डीप सी रिसर्च. सबमरीन प्लेटो एंड मरियाना ट्रैंक, क्योंकि समुद्र की गहराई कितनी है, कौन से रॉक्स मिलते हैं, कितने साल पुराने, उससे पता चलता है. नेक्स्ट, विच ऑफ दिस आर अप्रोप्रिएट टू बी यूज्ड टू फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मरीन बॉर्डर्स एंड नवल बेस? कॉन्टिनेंटल शेल्फ. आंसर इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ is appropriate to be useful for the protection of marine border and naval base building. Continental shelf. Okay, I hope बाकी के ज्योग्राफिकल रीजन आपने अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है, फर्स्ट वीडियो देख लोगे तो समझ में आ जाएगा, तो फर्स्ट वीडियो को देख लेना. सो आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. So if you understand, so please share this video more and more and like our video and subscribe our channel Abbas Academy, and ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करो और don't forget to watch the part 1 of this video.